morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for our third session of chapter number 3 named measurement. Right? And children, today is the last session of this chapter because today we are going to study the last part of the chapter. Right? But before starting today's lecture, let us revise what we have learned in our previous sessions. Right? In our previous sessions, we have learned about measurement of length. Or you can say units of length. We have learned different units. What are units of length? You can see on the board. The units of the length are, the base unit of the length is meter. Otherwise, the unit of the lengths are centimeter, meter and kilometer. You can measure length with the help of centimeter, meter and kilometer. Right? And what are the formulas for that? 1 meter is equals to 100 centimeter. Or you can say that 100 centimeter is equals to 1 meter. Right? And the second thing is 1 kilometer is equals to 1000 meter. How much? 1 kilometer is equals to 1000 meters. Right? Now, second thing that we learned in our second session was about unit of mass. You can also call it weight. Right? And what's the standard unit of weight? It is gram. And this is the short form of gram. Right? And what is the larger unit, or you can say bigger unit of weight is kilogram. Right? Now, how can you describe or you can formulate these things? For that you have the formula 1 kg is equals to 1000 gram. 1 kg is equals to 1000 gram. It means when 1000 grams come together, it makes 1 kilogram. Okay, so now children, based on this, we are going to start the third part of the chapter, which is units of capacity. What is units of capacity? It is also known as volume. It is also known as volume. Now, what is unit of capacity? आपको कैसे पता चलेगा? Unit of capacity means when you measure the things that are form of liquid or any water formation are known as units of capacity. जिससे किसी की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की वो पता चले, उसको हम units of capacity में measure करते हैं. For example, if I want to measure water, मेरे पास एक ग्लास है, उसके अंदर वाटर है, इसमें कितना वाटर है वो मुझे मेजर करना है, तो मैं उसके लिए ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर यूज नहीं कर सकती. क्यों? बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में है, वो इस चीजों से मेजर नहीं होता. फॉर दैट आई विल नीड यूनिट ऑफ कैपेसिटी टू measure. Suppose I have a glass of juice. I want to measure that. Or I am having a coconut water, nariyal pani. I want to measure the water in the coconut. How can I measure? With the help of unit of capacity. Now, what is unit of capacity? What is the exact standard unit of capacity? The standard unit of capacity is liter. What is it? Liter. L-I-T-R-E. This is the base unit. What is base unit? जो common unit जो है जिससे हम कैपेसिटी के लिए कुछ भी मेजर करते हैं वो है लीटर. अब लीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? L, स्मॉल l. राइट? और जब बड़ी कैपेसिटी मेजर करनी हो, बड़ा सा कुछ मेजर करना हो लिक्विड, उसके लिए आप लीटर यूज करते हो. बट जब आपको कोई छोटी चीजें यूज करनी है मेजर करने के लिए, छोटा सा एक ग्लास यूज करना है, एक कप यूज करना है, या छोटी क्वांटिटी में कोई भी चीज आपको मेजर करनी है, उसके लिए आप यूज करते हैं मिलीलीटर. क्या यूज करते हैं? You use
milliliter. And what is the short form? ml. Small m, small l. Okay. This is liter, this is milliliter. Milliliter for small quantity, yeah, small capacity you can say, and liter for large capacity. रिमेंबर कैपेसिटी में कौन सी चीजें मेजर होती है? जो लिक्विड होता है. इट कैन बी जूस, इट कैन बी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनी लोशंस, शैम्पूज. जो भी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें आ रही है वो सारी आप कैपेसिटी में मेजर करते हैं. राइट. सो सपोज अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 ग्लास पानी है. राइट. सपोज दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. इतना पानी भरा हुआ है इसमें. ये मुझे मेजर करना है तो ये मैं किस में मेजर करूंगी? ml, मिलीलीटर में, बिकॉज ये छोटी क्वांटिटी है. इसमें हो सकता है पानी 100 ml हो, 200 ml हो, 300 ml हो. Whenever few drops of water, this is an example, few drops of water makes 1 ml. छोटा सा ml बनाता है. फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है वैसे वैसे ml बड़े होते हैं. सपोज एक ग्लास है, उसमें आधा से पौने जितना पानी भरा हुआ है, सो वी कंसीडर इट एज 100 ml. सिमिलरली आपने let me draw. Yes, this is a rough drawing. Eye drops होते हैं, जो eye drops. Have you seen eye drops जो eyes में जाते हैं, लगाते हैं? वो आप डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आपको 5 ml जितना या 2 ml जितना या 1 ml जितना आई ड्रॉप आपको आंख में डालना है. तो व्हाट इज दैट? इज 1 ml या 5 ml, ऐसा जो भी उसका मेजरमेंट हो. दिस ml इज व्हाट इट इज? यूनिट ऑफ कैपेसिटी. राइट. सो जब भी आप छोटी क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो आप मिलीलीटर में मेजर करते हैं. डॉक्टर आपको कभी भी कोई दवाई देते हैं या सिरप देते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? आपको 5 ml, आपको एक सिरप के ऊपर एक छोटा सा उसका लिड होता है, एक ढक्कन होता है छोटा सा, उसको आप उसमें लिखा होता है ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml. यू माइट हैव सीन इट. उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिरप आपको डे में 2 टाइम्स पीना है. 5 ml इन मॉर्निंग, 5 ml इन आफ्टर इन इवनिंग. तो वो क्या हुआ? 5 ml. लिक्विड को आपने मेजर किया. सिरप किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. तो आपने क्या किया? लिक्विड को किस फॉर्म में मेजर किया? ml के थ्रू. क्यों ml के थ्रू? बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म है. लिक्विड फॉर्म यूनिट ऑफ कैपेसिटी में आता है और यूनिट ऑफ कैपेसिटी मीन्स मिलीलीटर एंड लीटर. राइट. सो छोटी चीजों के लिए आप मिलीलीटर और मिलीलीटर यूज करते हैं, जिसको हम ml बोलते हैं मेजर करने के लिए. और बड़े लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट जो है लीटर वो यूज करते हैं. नाउ बड़ी चीजें, ये हमने अभी छोटी चीजों के बारे में सीखा. नाउ व्हाट इज बड़ी? बड़ी मीन्स यू कैन से वाटर टैंक. बड़ा सा वाटर टैंक जो हमारी टेरेस पर होता है, टैंक्स. राइट. उसके अलावा स्विमिंग पूल. ओके. फिर बाथ टब्स. राइट. या फिर आप छोटा सा पॉन्ड होता है कहीं, या छोटा सा डेम या कुछ ऐसे टाइप का होता है, वो सारी चीजें लीटर्स में मेजर होती है. आप देख सकते हो स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी होता है, तो उसके लिए आपको लीटर की यूज पड़ेगी. उसको आप ml में मेजर नहीं कर सकते. फिर आप जब आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी बड़ी बॉटल्स लाते हैं मॉल में से, तो वो बड़ी बड़ी होती है, उसमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक होता है, ज्यादा लिक्विड होता है. वो आप किस में मेजर करते हो? लीटर में. आपकी मम्मी बोलती है ना कि 1 लीटर की बॉटल लेके आओ या 2 लीटर्स की बॉटल लेते आओ. या फिर आप बिस्लरी वाटर पीते हो. राइट. तो वो वाटर आप किस में मेजर करते हो? लीटर्स में. क्यों? बिकॉज दैट इज मोर देन मिलीलीटर. छोटी क्वांटिटी नहीं होती, वो बहुत सारी क्वांटिटी होती है. दैट इज वाई यू मेजर इट इन लीटर. राइट. सो बड़ी चीजें लाइक टैंक, स्विमिंग पूल, बिग बॉटल्स, ये सारी हम लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर में. और स्मॉल थिंग्स
like syrup bottles, or you can say eye drops, small glass of water, small glass of tea. These all kind of things are measured in milliliter. Okay, so today we learned about liter and milliliter. हमने ये दो चीजें पढ़ी, लीटर और मिलीलीटर. ये किस में यूज होता है? टू मेजर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. जब भी आप कैपेसिटी वर्ड सुनते हो, इसका मतलब मिलीलीटर और लीटर. और कैपेसिटी हमेशा लिक्विड फॉर्म की चीजों के साथ जाता है. आप कैपेसिटी में दाल मेजर नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट इज नॉट अ लिक्विड. सिमिलरली आई हैव सम एग्जाम्पल्स विथ मी. आई शो यू. See, I am having this spray. This spray bottle is of small quantity. तो ये किस में मेजर होगा? मिलीलीटर में, राइट, या ml जो आप बोलते हैं. और even I have this small baby cream. This is also measured in milliliter also. छोटी आती है या थोड़ी ये बड़ी है, तो ये लीटर में भी इस टाइप की मेजर होती है, राइट. अगर इसमें आप बड़ी लोगे, इतनी बड़ी आती है, दैट कम्स इन लीटर. ये छोटी है, सो दिस कम्स इन मिलीलीटर. सिमिलरली शैम्पू बॉटल्स, देन ऑयल बॉटल्स, जो आप ऑयल सिर में लगाते हो, या ऑयल जो आप खाने में यूज करते हो, ऑयल कैंस. दीज आर ऑल ऑयल कैंस जो होती है वो लीटर में मेजर होती है, और जो ऑयल की छोटी बॉटल आती है वो ml में आती है, राइट. आई होप चिल्ड्रन आपके माइंड में ये सारे पिक्चर्स आए होंगे और आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कि कौन सी चीज ml में जाती है, कौन सी चीज लीटर में जाती है, राइट. नाउ चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ओपन पेज नंबर 152. उसमें जो बुक में क्वेश्चन है, विल सॉल्व दैट रिलेटेड टू कैपेसिटी, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व the exercise and the HOTS question also. Okay, so please open page number 152. Okay, now first question is, see children, I will not be able to draw, so I will write. आप बुक में ड्रॉ किए हुए पिक्चर से आप उसमें से देखिए. ओके, फर्स्ट इज विच टैंक हैज ग्रेटर कैपेसिटी. 2 टैंक्स हैं. फर्स्ट टैंक में 1000 लीटर है और सेकेंड टैंक में 750 लीटर. अब आप सोचो, आपको ऑलरेडी नंबर्स 1000 तक आ रहे हैं. 1000 बड़ा हुआ या 750, दोनों लीटर है. अगर यहाँ पे ml होता तो बहुत इजीली पता चल जाता कि ml छोटा है, लीटर बड़ा है. अब इसमें पूछा है दोनों लीटर्स हैं. विच टैंक हैज ग्रेटर कैपेसिटी. विच हैज ग्रेटर कैपेसिटी, किसमें ज्यादा है? 1000. तो आप आंसर क्या लिखोगे? 1000 लीटर ऐसे लिखोगे. टैंक, ये आपका आंसर हुआ. क्वेश्चन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, विच टैंक हैज ग्रेटर कैपेसिटी. आप क्या लिखोगे? 1000 लीटर टैंक. ओके, क्योंकि ये इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा ग्रेटर हुआ, राइट. ना उसके पास में ही पिंक बॉक्स वाला क्वेश्चन है, दैट विल सॉल्व. डैश इज इक्वल्स टू ml इज इक्वल्स टू 2 लीटर. 2 लीटर. ऑप्शंस आर 200, 2000 और C is 20. What will be the answer? मैंने बोला था 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. I forgotten, I think ये इसका बेस फॉर्मूला है. 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 ml. जैसे आपने किलोग्राम ग्राम में देखा, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. वैसे ही 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर. ओके, सो अगर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो कितने ml इज इक्वल्स टू 2 लीटर. 2 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच? सिंपल. 1 लीटर के लिए 1000, तो 2 लीटर के लिए 2000. ओके, सो क्या आंसर है 2000? यस, इट इज बी. सो व्हाट यू विल राइट?
2000 ml is equals to 2 liter. Okay, you'll write this way. Okay, now moving on to exercise 3.3, page number 153. Please open exercise 3.3. Now children, what is the question? Circle the unit that you will use to measure the capacity in each of the following. आपके पास पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको उसके ऊपर से डिसाइड करना है कि ये लीटर में जाएगा या मिलीलीटर में जाएगा, राइट? ओके, सो फर्स्ट आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, exercise 3.3. Now, okay, so the first question is a glass of water. क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ml या l? What will be the answer of first? Glass of water. अब चेक करो, मैंने बोला था छोटा होता है ग्लास, so it will go in milliliter. So first का आंसर is ml. ओके, सेकेंड आपको सिर्फ ml को टिक करना है. एंड आई ड्रॉपर का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. आई ड्रॉप्स क्या होगा? छोटा होगा, सो ml. एंड थर्ड विल बी वाटर टैंक. वाटर टैंक बहुत बड़ा है, छोटा अगर दिया होता तो हम लोग सोचते, बट दिस इज ह्यूज, सो व्हाट विल बी? लीटर. थर्ड का आंसर क्या आएगा? लीटर. फोर्थ इज अ मेडिसिन बॉटल. अब मेडिसिन बॉटल, इसमें साइज छोटी दी गई है. अगर बहुत इतनी बड़ी साइज दी गई होती तो हम लोग लीटर में लिखते, बट इसमें छोटी सी साइज दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे? मिलीलीटर. ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ इज अ बाथ टब. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बाथ टब किस में जाएगा? लीटर में. सो यू विल टेक लीटर. ओके, देन सिक्स्थ इज अ स्पून. स्पून तो छोटा होता है, आपको ऑलरेडी पता है, वो मिलीलीटर में या लीटर में किस में जाएगा? मिलीलीटर. सो अगेन you will take milliliter, right? So this was page number 153. Now turn the page. We will be solving HOTS question 1, 2 and 3. And in this chapter math around us आपको cancel कर दो, because इसमें आपको अपने हिसाब से अपनी चॉइस के आंसर्स लिखने हैं. आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज ओके, बिकॉज थर्ड मैथ अराउंड अस में आपकी हाइट वेट वही पूछा गया है. सो आंसर विल चेंज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो इफ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टोटली अप टू यू. ओके, नाउ HOTS क्वेश्चन, पेज 154. Am I right? Yes, this page 154. First question, आप बुक में देख सकते हैं. How many stars are needed in balance 3? So that both pens are at the same level. अब आप देख रहे हो आपके पास 3 पेन्स दिए गए हैं. अब फर्स्ट पेन में एक सर्कल है और उसको इक्वल करने के लिए 2 स्टार्स चाहिए. ये मैं फर्स्ट पेन लिख रही हूँ. ओके, सेकेंड पेन इसको इक्वल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर रही. ओके, तो इसका मतलब है एक सर्कल इज इक्वल्स टू 2 स्टार्स. ओके, अब सेकेंड में है एक ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 सर्कल एंड 1 स्टार. ये सेकेंड का डेफिनेशन है. ओके, केस ट्राइंगल मतलब एक सर्कल और एक स्टार. अब थर्ड में आपको क्या पूछा गया है? 2 ट्राइंगल्स एंड 1 स्टार. इसका इक्वल क्या होगा, ये आपको पूछा गया है. नाउ व्हाट डू यू थिंक कि इसका आंसर कैसे पता चलेगा? कैन एनीबडी टेल मी? एनीबडी ऑफ यू थिंक इन योर माइंड? यस, सम ऑफ यू आर गेसिंग राइट कि हमको इनको डिकोड करना है. डिकोड मतलब जिसकी जो प्लेस है वो उसकी जगह पे वो चीज रखनी है और उसके हिसाब से आंसर फाइंड करना है. राइट? सो
अब यहाँ पे आप बुक में अभी कुछ नहीं लिखोगे, मैं बोलूंगी वही चीज आप बुक में लिखोगे। अब आपको ऑलरेडी पता है 1 सर्कल मतलब 2 स्टार, राइट? ये आपको ऑलरेडी पता है कि 1 सर्कल मतलब 2 स्टार। तो यहाँ पे ट्राइंगल चाहिए, इसका मतलब 1 सर्कल, और 1 सर्कल का मतलब 2 स्टार। तो हम लोग इधर सर्कल की जगह पे ऐसे कर सकते हैं 2 स्टार, राइट? इसको बोला, ये जो मैंने किया इसको बोला, इसको कहते हैं डिकोडिंग। ये आपने डिकोड किया, इसका कोड था ये, और ये आपने इधर लगाया, इसका मतलब आपने डिकोड किया। और ये जो 1 स्टार है वो वापस यहीं पे रख दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 स्टार्स। एम आई राइट? 1 स्टार तो इसका था वही, और ये सर्कल की 2 स्टार्स, राइट? अब इसी के ऊपर से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। यस, चलो तो फर्स्ट एक ये स्टार जो ऐसे ही पड़ा है उसको हम ऐसे ही रखते हैं स्टार, ठीक है, उसको ऐसे ही रखने देना है। अब 2 स्टार्स लिखा है, तो 1 स्टार मतलब 3 सर्कल्स, तो उसके 3 सर्कल्स में ड्रॉ कर दूं। 3 सर्कल्स नहीं, 3 स्टार्स, ओके। और सेकेंड ट्राइंगल मतलब अगेन सेम 3 स्टार्स, तो अगेन मैं 3 स्टार्स दूसरे ड्रॉ करती हूँ। तो मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स। व्हाट विल बी द आंसर? 7 स्टार्स। तो यहाँ पे ब्लैंक में मैं क्या रखूंगी? 7 स्टार्स। मैं लिख भी सकती हूँ या मैं ड्रॉ भी कर सकती हूँ। अब आप अपनी बुक में कैसे कॉपी करोगे? ये आपको ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, आप इसमें कुछ भी नहीं करोगे। सेकेंड में आप सिर्फ नीचे थोड़ी स्पेस है या ऊपर स्पेस है, वहां पे ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 स्टार कर दो, और जो थर्ड है उसमें आप डायरेक्टली ये आंसर लिखोगे। इसका मतलब सिर्फ सेकेंड के लिए आपको थोड़ी जगह करके आंसर लिखना है, बाकी थर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस है, वहां पे आप ये आंसर लिखोगे, राइट? सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द हॉट्स क्वेश्चन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मेजर करने के लिए 2 स्टार चाहिए, इसको मेजर करने के लिए 1 स्टार और 1 सर्कल चाहिए, तब ये इक्वल होगा। तो अब इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो? तो इसका आंसर हुआ 7 स्टार्स, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन is in how many ways you can fill 8 liter can using a 2 liter can and a 1 liter can. आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, 1 कैन है 8 लीटर का, 1 कैन है 2 लीटर का, एंड द थर्ड कैन यू आर हैविंग इज 1 लीटर। 1 मिनट, या इट इज 1 लीटर। अब आपको पूछा है कि आपके पास अलग अलग वेज हैं जिससे आपको 8 लीटर का कैन बनाना है, बट वो कैन आप किससे बनाओगे? 2 लीटर से और 1 लीटर से। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो? व्हाट इज द आंसर? थिंक। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपको ऐसे ही लिखना है, मैं जैसे लिखती हूँ, पास में जगह है वहीं पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2 लीटर के मैं कितने कैंस लूंगी? इसमें पूछा है कि 2 लीटर और 1 लीटर का कैन ही यूज करना है, इसका मतलब 8 लीटर का तो कैन यूज करना ही नहीं है, आपको 8 लीटर बनाना है। पर कैसे? 2 लीटर का 2 लीटर 1 कैन अगर लेती हूं तो 2 लीटर हुआ, 2 कैन लेती हूं तो 4 लीटर हुआ, 3 कैन लेती हूं तो 6 लीटर हुआ, और 4 कैन लेती हूं तो 8 लीटर हुआ। तो कितने कैंस लिए मैंने? 4 लिए, 2 4 जा 8, सो 2 लीटर 4 कैंस। आप ऐसा ही लिखोगे, 2 लीटर 4 कैंस कैन बी यूज्ड, राइट? ये हमने सिर्फ 2 लीटर से बनाया। अब अगर 1 लीटर के बनाने हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट? तो 8 लीटर होगा। सो क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन क्या लिखोगे? 1 लीटर 8 कैंस कैन बी यूज्ड। ये हमने सिर्फ 2 और 1 से बनाया। अब थर्ड ऑप्शन होगा 2 और 1 का कॉम्बिनेशन करें, तो 2 लीटर के अगर मैं 3 कैंस लूंगी, 2 लीटर 3 कैंस, 2 लीटर के 3 कैंस लिए, मतलब 2 + 2 4 and 2 6, राइट? अब कितने बचे? 2 बचे। तो क्या करना है?
1 लीटर के 2 कैंस लूंगी तो 2 होगा C। 2 + 2 + 2 इसके 3 कैंस तो ये 6 हुआ और 1 + 1 अब टोटल हो गया 8, राइट। तो 2 लीटर के कितने लिए 3 और 1 लीटर के कितने कैन लिए 2। सो क्या लिखूंगी 2 लीटर के 3 कैंस एंड 1 लीटर 2 कैंस कैन बी यूज्ड। अब फोर्थ एक ऑप्शन और है, अगर मैं यहां पे ये 1 निकाल दूं तो क्या हुआ 2 + 2 4 और यहाँ पे और कितने चाहिए 8 करने के लिए 4 चाहिए तो मेरे पास 2 है 3 + 4 तो ये कितने कैंस हुए 4। ये कितने कैंस हुए 1 और 1 2 कैंस और ये कितने हुए 1 2 3 4 कैंस। ये भी एक ऑप्शन है, राइट। 2 कैंस ऑफ 2 लीटर 4 कैंस ऑफ 1 लीटर, राइट। तो 2 लीटर के कितने कैंस हुए 2 लीटर 2 कैंस एंड 1 लीटर 4 कैंस कैन बी यूज्ड। अभी और एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई, लेट मी चेक। यहां पे 2 कैंस की जगह पे हम लोग सिर्फ अगर 1 कैन कर दे तो 2 का तो कैसा रहेगा, सिर्फ 1 कैन कर दे ये 2 लीटर तो यहाँ पे कितने होगा 3 4 5 6 7 और 1 मोर 8 इसका मतलब 6 1 2 3 4 5 + 1 6। अब देखो ये 6 और 2 8 लीटर हुआ, राइट। तो इसके कितने हुए 1 कैन, ये सिर्फ 2 एक ही लिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 लेट मी चेक ओके 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 सॉरी सो 6 कैंस हुए। तो ये देखो ये एक ऑप्शन बन रहा है। सो व्हाट वी विल राइट 2 लीटर 1 कैन and 1 liter 6 cans can be used, right? This is the other option। अभी कोई ऑप्शन बच रहा है नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं 2 लीटर की निकाल दूंगी तो सिर्फ 1 लीटर होंगे, वो हमने ऑप्शन ऑलरेडी लिखा। सो कितने ऑप्शन हुए, अगर सिर्फ 2 लीटर की बॉटल यूज करती हूं मैं तो 4 कैंस, अगर सिर्फ 1 लीटर की बोतल यूज करती हूं तो 8 कैंस। अब अगर मैं 2 लीटर की 3 बॉटल्स यूज करती हूं और 1 लीटर का 2 कैंस यूज करती हूं तो क्या ऑप्शन बनता है 2 लीटर 3 कैंस 1 लीटर 2 कैंस। तो ये क्या बना थर्ड ऑप्शन 6 7 8, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज 2 लीटर के मैं 2 कैंस लूंगी, इट मीन्स 4 2 + 2 और 1 लीटर के 4 कैंस लूंगी 1 1 1 1 तो क्या हुआ 4 + 4 8। सो दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज 2 लीटर का सिर्फ एक ही बॉटल लूंगी तो एक मतलब 2 लीटर हुआ तो रेस्ट कितने बचे 6 लीटर। सो 1 लीटर के 6 कैंस लूंगी, राइट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। ऐसे आप घर पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर कर सकते हो। यू रिमेम्बर दिस इज सेम एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मनी दैट वी हैड ऑलरेडी डन, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको टेबल कंप्लीट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मीटर सेंटीमीटर। अब एक फर्स्ट दिया गया है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब सेकेंड में दिया गया है 2 मीटर तो उसका कितना सेंटीमीटर होगा, सिंपल 200। सो सेकेंड में आप क्या लिखोगे, उसका सेकेंड जो है 200 सेंटीमीटर। कहां पे जाएगा ये लिखना, सेंटीमीटर वाले बॉक्स में। ओके, नाउ थर्ड उसी में है 400 सेंटीमीटर दिया गया है। 400 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मीटर, राइट।
तो उसी में थर्ड क्या आएगा 4 मीटर। किस में लिखोगे? ऊपर वाले बॉक्स में जहां मीटर की स्पेस दी गई है, राइट। फिर फिफ्थ में, उसके बाद जो है फोर्थ में, उसमें 5 मीटर दिया गया है, तो 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। तो फोर्थ में सेंटीमीटर में क्या आएगा 500 सेंटीमीटर। और लास्ट 700 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मीटर में क्या आएगा 7। व्हाट यू विल राइट 7 meter, right? So these were 3 questions of HOTS that we have solved, right? And now with this children we come to an end of our chapter, right? Now homework for the day is, आपको जो पहले आपने किया है आगे पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। Homework page 145, very less homework today, question number 3. Okay, this is your homework for the day and you have to solve it in which book? Textbook. Okay, this is your homework. So children, I hope you are cleared with this chapter and you will revise this chapter so that you get a good idea about the concept. So with this we come to an end of our chapter and I hope you enjoyed the session and we'll be meeting back soon. Bye.